Hello children, welcome to my channel Learn Science with Yasir Azam. This video is for class 7th and this is the this is the third part of the chapter obtaining and utilizing food. Till now we have discussed about autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. In heterotrophic, one of the type of nutrition, a mode of nutrition was holozoic, of which the example is human digestive system. Today we will study in detail about human digestive system. What is digestion मेरा बच्चा? Digestion is breaking down of food from complex to simpler substances. मगर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमने जो रोटी खाई, whatever food we have taken, वो उसी तरह से absorb हो जाए, उसको तोड़ने की जरूरत ना पड़े? नहीं, it is not possible. The diet which we are taking, the food which we are taking consists of many nutrients like carbohydrate, fats, protein, lipids, minerals. Water is also part of our diet. So that is needed to be broken down into simpler substances so that we can use it and derive the energy for doing different tasks and functions. So digestive system is mainly made up of two parts or two things, that is digestive system divided into two parts, that is alimentary canal and digestive glands. Alimentary canal क्या है? आपके मुंह से शुरू होके anus तक जाता है, means starting from the ingestion process, from where you are taking your food and from where you are removing your undigested food. That a chain or complete passage is there, that is called as alimentary canal. It is a muscular structure, okay, in which all the activities of digestion occur. Along with that, there are certain glands which help to add their juices in this alimentary canal so that you can digest your food easily, and that is called digestive glands. Different glands are there in your body like salivary gland, liver, gallbladder. Different glands are there helping you to digest your food. So we'll be starting from mouth. So in mouth, पहले तो एक और चीज समझ लीजिए कि डाइजेशन दो तरह से, एक मैकेनिकल है, केमिकल है. केमिकल वो है जिसमें ऑल द केमिकल्स लाइक एंजाइम्स आर एक्टिंग टू डाइजेस्ट इट. बट जो पहला हमारा है वो मैकेनिकल. भाई ऐसा तो नहीं हमने रोटी ली, ऐसे रोल बनाया, ऐसे ऐसे करके पूरा निगल लिया. वी आर टेकिंग इट, वी आर मैस्टिकेटिंग इट, वी आर ब्रेकिंग डाउन, वी आर चूइंग इट. सो व्हाई वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग इट लिटिल बिट स्मॉलर. और स्मॉल पार्ट्स में वो टूटेगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से. बट माउथ का प्राइमरी काम यही है टू tear it into pieces, you have to break down into smaller pieces. Okay, जब हम माउथ की बात करते हैं तो starting from mouth we intake the food, it is called as ingestion. 5 process total है: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. We are starting with ingestion, taking in food in the mouth. In mouth what is happening? We are having teeth. We are called as 4-5 चीजें हमारे teeth के basis पे हमें बोला जाता है. 3 basic things are there. We are diaphodont, we are thecodont, we are heterodont. क्यों? Thecodont because हमारे teeth जो है हमारे jaws में, bones में fix हैं. That is why we are thecodont. Diaphodont क्योंकि हमारी जिंदगी में 2 बार teeth निकलते हैं. Number 1 milk teeth जो हम छोटेपन में निकलते हैं, आप सबके टूट चुके होंगे. Milk teeth and the second one are permanent teeth. That's why we are diaphodont. Okay. And the next one is heterodont. Why heterodont? Because our teeth are of different types. Okay. जैसे हमारे एक जैसे टीथ नहीं है कि आप हंस रहे हैं, आपके सारे टीथ एक जैसे हैं, गाय के एक जैसे लगते हैं देखने में, आप हंसेंगे तो आपके अलग अलग हैं. 2 पॉइंटेड हैं, 2 ज्यादा शार्प हैं, बाकी ग्राइंडिंग टीथ्स हैं. तो ये 4 टाइप्स ऑफ टीथ क्या है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. इंसीजर्स आर 8 इन नंबर, 4 अप 4 डाउन. फॉर्मूला के बेसिस पे अलग है. फॉर्मूला हमारा डेंटल होता है 2123 अपॉन 2123 into 2. अभी मैं समझा दूंगा हाउ, ठीक है, लेकिन अभी मोटा मोटा समझ लें. 8 इंसीजर्स वी हैव, 4 कैनाइन्स वी हैव एंड 8 what is this? 8 premolars are there and 12 molars we are having. They help us to digest. They help us to break down the food or tear or chew the food into simple little bit smaller pieces. Okay, teeth के function समझ लेते हैं. Incisors are front teeth. इनका काम होता है tearing. tearing. इनका काम होता है cutting. When you eat an apple, you cut like this, not do like this. You cut like this, ना. तो टीयरिंग, कटिंग का काम होता है इंसीजर्स का. टीयरिंग का काम करते हैं कैनाइन्स. ये these are the proof that we are omnivores, not carnivore basically, because we are having incisors also and canines also. तो omnivores हम अपनी बनावट से ही omnivores हैं. Okay, so canines are there and then premolars and molars function is to grind, चबा लेना बढ़िया से एकदम. तो ये काम होता है हमारे टीथ के. फॉर्मूला की बेसिस से बात करें तो मुंह को 1/4 में आप डिवाइड कर लें. फॉर्मूला होगा 2 1 2 3. भाई ऊपर का अगर आप इतना हिस्सा देखें मुंह का अपना, तो आपके 2 टीथ, यहाँ पे 2 इंसीजर्स आएंगे, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स. इधर वाले भी ऐसे, नीचे ऐसे, नीचे ऐसे. तो इंटू 4 करके भी आप निकाल सकते हैं, या फिर अपॉन ये इंटू
टू कर देंगे। काट नहीं देना है इसको कि अपॉन ये कर दिया तो ये तो सब कट गया, 2 बचा, ऐसा कुछ नहीं कि आपके 2 ही दांत है। इट इज अ वे दैट साइंटिफिक वे ऑफ राइटिंग द डेंटल फॉर्मूला। तो टीथ हो गए, टीथ का काम हो गया। अलॉन्ग विद दैट टंग इज देयर व्हिच इज वेरी स्ट्रांग, और यू कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी इज आवर टंग। आपकी जबान कई हड्डियां तोड़वा सकती है। चलो खैर ये तो कोटेशन हो गया। तो टंग क्या है? इट इज एन स्ट्रॉन्गेस्ट मसल व्हिच हेल्प टू ट्रांसफर द फूड, नॉट ट्रांसफर बेसिकली, पूरे मुंह में घुमाते रहती है टंग फूड को। आप इधर थोड़ा चबाते हैं, फिर थोड़ी देर इधर ले जाते हैं। Along with that, certain glands are present in our mouth. Not certain. 3 pairs of glands at different locations are present. These are called as salivary glands. Okay. अगर हम salivary gland की बच्चा बात करते हैं, so आपके syllabus के हिसाब से नाम जानना जरूरी नहीं है, but just for an information आपको पता होना चाहिए। Sublingual, submaxillary, parotid glands है। गलसुआ निकल आता है, it is because of parotid glands. ये glands आपके मुंह में present होती है, which releases an enzyme, watery enzyme, which is called as saliva. और सलाइवरी एमाइलेज, जिसमें 1% में ही एंजाइम आ जाता है, 99% नियरली आपका उसमें वाटर होता है। दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। 2 काम है बच्चा। पहली चीज तो सलाइवरी एमाइलेज क्या कर रहा है, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा है सिंपल फूड में, यानी शुगर को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन आएगा फ्रॉम वेयर डाइजेशन, अगर हम पेट सोचते हैं ना, इट्स नॉट स्टमक, इट्स फ्रॉम माउथ। द डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ। ओके, तो बच्चा माउथ में टंग, टीथ और सलाइवे का रोल आपको पता चला। एक और रोल है सलाइवरी एमाइलेज का। सलाइवा क्या करता है, फूड को सॉफ्ट कर देता है ताकि उसको आसानी से निकल सके। ओके, जैसे हम लोग रोजा रखते हैं, आज मैं रोजे से हूँ, तो रोजे में अगर आप दिन भर कुछ ना खाएं और शाम को एकदम से कुछ खाएं तो फंसने लगता है, बिकॉज वी डिडंट हैव मच सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, पानी की कमी होती है बॉडी में। सो उसके लिए जो अगर सलाइवा ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है या हम पानी पीते हैं, सो दैट मेक्स द फूड सॉफ्ट टू पास थ्रू योर इजोफेगस। अब इजोफेगस क्या बला है, मुंह समझ में आ गया, इसका रोल समझ में आ गया। इजोफेगस इज फूड पाइप और a pipe-like structure which passes the food from mouth to stomach, कनेक्ट करता है। लेकिन ईसोफेगस में किसी तरह का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, तो फिर खाना नीचे उतरा कैसे? ऐसे कैसे पता चला फूड को कि मैं नीचे ही जाना है, ऊपर क्यों नहीं आ गया? तो पहली चीज तो ये समझने की, जो आपका फूड पाइप है ये 2 पार्ट्स में है। एक तो फूड पाइप है, उसके पड़ोस में ही विंड पाइप है। तो दोनों में कंफ्यूजन होगा कि अगर खाना जा रहा है तो कहीं विंड पाइप में ना चला जाए। तो बीच में एक ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, विच इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। When we eat, it is kept on windpipe. When we breathe, it is kept on food pipe. इसी वजह से कहते हैं खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि एपिग्लॉटिस भी कंफ्यूज है, भैया मैं यहाँ रहूँ कि यहाँ रहूँ, पता चले विंड पे गया है तो जो है आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, और जब फूड पाइप पे गया है तो आप खा नहीं पा रहे हैं। सो इस वजह से खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। डोंट कंफ्यूज योर एपिग्लॉटिस। खामोश रह के खाना खाना चाहिए, खामोश। अच्छा, तो आगे आ जाते हैं। इज़ोफेगस से नीचे कैसे उतरा? स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट इज देयर, पेरिस्टाल्सिस, जो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में बच्चा चलती है, फ्रॉम योर माउथ टिल एनस। ऐसा नहीं सिर्फ मुंह में चल रही है, एनस के पास में नहीं चल रही, वरना बॉडी से बाहर कैसे निकल रहा है, जो भी वेस्ट निकल रहा है। इट ऑल बिकॉज ऑफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इस तरह का एक मूवमेंट होता है आपकी एलिमेंट्री कैनाल में, इज़ोफेगस में, कि जैसे ये आप ऐसे समझे पूरा एक पाइप इमेजिन करें और इसका ये फ्रेगमेंट, तो ऐसे ओपन हुआ, यहाँ फूड को दबाया ऐसे तो नीचे के पार्ट ओपन हो गया, फिर वो दबा नीचे का ओपन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। तो खाने को मुंह से पहुंचा देता है स्टमक के अंदर। स्टमक में पहुंचने के बाद स्टमक में प्रेजेंट होता है HCl, पेप्सिन, रेनिन, बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं which start acting on your food, the food which you have eaten. Okay. और अगर एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो स्टमक के अंदर इंस्टेंट एब्जॉर्ब हो जाता है हमारा वाटर और शुगर, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। बाकी एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। डाइजेस्टिव जूसेस और डिफरेंट ग्लैंड्स का फंक्शन मैं अभी आपको बताता रहूंगा। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड का पूरा डिटेल में अलग से मैं बता दूंगा। ठीक है, कौन सी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, पहले आप सिर्फ पाथ समझ ले। पाथ क्या है? स्टमक में पहुंचने के बाद स्टमक से द फूड गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, which is the largest part of your alimentary canal, nearly 7 meter long, coiled, highly coiled, and जो structure है वो यहाँ पे present है, जो हमें दिखता नहीं है। ठीक है, which is a highly coiled structure in which food keeps on passing। तो अगर हम इतनी बड़ी रोटी खा जाए बिना चबाए और फिर उसको तो पास होने में मसला होगा, दिक्कत होगी। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि हमें अच्छे से खाने को चबा के खाना चाहिए। एक चीज आप और देखें, एवरी रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, whatever the religion books are there, you will see the eating habits are given in their books. So क्या वो बताते हैं, वो सारी चीजें साइंटिफिक हैं कि खाने को चबा के खाना चाहिए। तो क्यों? Because it will help for your digestive system to pass the food easily, to help in driving the nutrient or to digest it easily. So we should follow the good parts of every religion. Okay, we should not be biased कि हम ही अच्छे हैं, हमारा religion अच्छा है बच्चा। We should respect each and everyone because everything is made by God and God is one.
तो अब खाना पहुंच गया हमारे पेट में, वहां से पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सम पार्ट ऑफ फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक, आई हैव टोल्ड यू स्टार्च एंड वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज विलाई। विलाई का काम क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक लाइन ऐसे खींच के दूं और जगह इतनी और इतनी लाइन में मैं ऐसे ऐसे बना दूं, अब मैं दोनों चीजों को कहूँ सरफेस पे पेंट करूँ, तो नेचुरली इसमें ज्यादा पेंट लगेगा। तो इट मीन्स इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ small intestine so that more and more absorption can happen and would be possible। होता क्या है, पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों ही ओपन होते हैं किसके अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और डाइजेस्टिव जूसेस इसमें मिलते हैं। अब ये क्या है डक्ट, ये क्या सारा बवाल है, मैं अच्छे से भी आपको बताने वाला हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। फिर यहाँ से फूड पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली 3 पार्ट्स में बच्चा, कोलन, रेक्टम और एनस। ओके, तो क्या होता है जब इलियम जो होता है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, दैट इज ज्वाइंट विद द कोलन। कोलन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। लार्ज हम कहने को लार्ज कहते हैं, पर लार्ज नहीं है, लार्ज स्मॉल है, स्मॉल लार्ज है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसका जो डायमीटर है, ठीक है, दैट इज लेसर इन कंपैरिजन टू दैट लार्ज इंटेस्टाइन। इस बिहाफ पे हमसे बात करते हैं कि स्मॉल लार्ज है और लार्ज स्मॉल। ओके, सो जब हम बात करते हैं तो 1 सेकेंड, हाँ एक चीज रहेगी, कोलन के पास बेटा एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। वॉल्व का फंक्शन होता है बैकफ्लो को रोकना, फूड आगे की ही तरफ आए, पीछे ना जाए। पता चले स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में आया, थोड़ी देर में बैकफ्लो मार गया फूड, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वॉल्व इज प्रेजेंट ओवर देयर, ओके, विच हेल्प्स इन द बैकफ्लो ऑफ द फूड। इसके बाद जो हमारी एनर्जी है, दैट इज digested food glucose that get absorbed by the blood and get transported in your entire body। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा circulatory system, for which you can see my video of for class 10th I have uploaded in life process circulatory system। आप देखेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो रेक्टम कोलन में वेस्ट बचा होता है, that is thrown out of our body through the process called egestion। okay, ये तो हो गया हमारा digestive system का पूरा ट्रैक। okay, this much is there in your book only, I think so। बाकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अलग से है, दैट आई विल लेट यू नो। रूमिनेंट का पूरा अलग से एक वीडियो में बना दूंगा। रूमिनेंट क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप देखते देखते भी बोर हो जाते हैं, बात करने के लिए कुछ है नहीं, मजा करने के लिए कुछ है नहीं, कंटिन्यूअस सुनना ही आपको मुझे पड़ता है। डोंट गेट बोर, थोड़ी देर सुने, फिर आप थोड़ा सा नोट्स बनाएं, फिर कुछ करें, फिर सुने। जरूरी नहीं कि वीडियो को लेके बैठ गए तो खत्म करके मानेंगे, आप मुझे आगे पीछे भी चला सकते हैं, स्लो स्पीड कर सकते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मी वेल। But the purpose of education is just to train your mind to evolve yourself and bring out the best in you। Okay बच्चा, so next हमारे salivary gland की हम बात करते हैं। मुंह से शुरू हुआ तो मुंह से ही बात करेंगे। सबसे पहले हमारे मुंह में gland present होती है salivary gland, which is called as not called as, which is of 3 type। Okay, I have told you earlier, sublingual glands, submaxillary, parotid glands। इनके साथ साथ सलाइवा के साथ साथ they also secrete certain elements और आयंस लाइक मरकरी, लेड, आयोडाइड, ओके, और कुछ कैटालिटिक सब्सटेंस भी ये प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और क्वेश्चन आता है कि हमें जो हम HCl बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है स्टमक में, वो स्टमक को क्यों नहीं हार्म कर रहा है जब इतना स्ट्रॉन्ग है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इट कैन किल, सो व्हाई इट इज नॉट हार्मिंग द स्टमक? बिकॉज बेटा स्टमक इज हैविंग एन लाइनिंग ऑफ म्यूकस व्हिच हेल्प द स्टमक टू गेट help the stomach from getting damaged। okay, now coming to liver, it is also part of digestive gland। it is the largest part of your body, sorry, largest gland of your body, not largest part of your body, largest gland of your body। it is covered with peritoneum layer। okay, इसके ऊपर एक पेरिटोनियम की लेयर होती है। लीवर जो होता है हमारा, ये सिक्रीट करता है बेटा बाइल सिक्रीट करता है, which helps in digestion of fat। whatever food we have taken in that contain fat also, so fat will get emulsified or digested by the bile juice which is produced from liver। bile juice directly mix नहीं हो जाता है कि bile juice liver ने produce किया और वो गया और mix हो गया हमारा small intestine में food के साथ या digestion जिसका हो रहा है उसके साथ। it first gets stored in gall bladder। okay, that is also a gland, that is heterocline gland, जिसमें enzyme और hormone दोनों produce होते हैं, तो वहाँ पे store हो जाता है, and then when it is required it is released into the where small intestine। ठीक है, it makes the stomach alkaline and prevent the stomach from getting acidic। okay, alkaline का मतलब क्या होता है कि ये समझ लें कि न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को,
ठीक है, बेसिक बना देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, वरना एसिड से आपको ज़्यादा एसिड हो और बाइल सिक्रीट कम हो रहा हो तो एसिडिटी हो सकती है। ठीक है, लीवर के बहुत सारे फंक्शन है कि आपकी बॉडी में जो आपने खाना खाया आपने एक्सेस ग्लूकोज कंज्यूम कर लिया, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू बेटा ग्लाइकोजन। और बहुत सारे फंक्शन है कि इट इज इट स्टोर विटामिन ए, सी एंड डी। इट ऑल्सो रेगुलेट द टेम्परेचर, बेसिकली टेम्परेचर ऑफ बॉडी कहने के बजाय टेम्परेचर ऑफ ब्लड, okay, which ultimately balances your body temperature. ठीक है, it is not all in your syllabus, but just for your knowledge I am telling you, you have to read from your book thoroughly, you have to listen me thoroughly. I'll be providing you notes, and when you study all these things together, slowly, fastly, however you feel good to do, you will be getting a good understanding बच्चा। Then coming to the pancreas, पेनक्रियास की जब हम बात करते हैं तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट की हमने बात करी थी, क्या थी, लीवर, इट्स वे अबाउट 1.5 to 2 kg, ओके। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी क्या है बेटा, पेनक्रियास। इट इज अ हेटेरोक्लाइन ग्लैंड व्हिच सिक्रीट्स द हार्मोन लाइक इंसुलिन व्हिच अल्टीमेटली बैलेंसेस द शुगर इनसाइड आवर बॉडी। आपने सुना होगा शुगर पेशेंट इंसुलिन लेता है, ओके, व्हिच इज बैलेंस्ड बाय पेनक्रियास, प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियास, ओके। बाकी के फंक्शन आप ये समझ लें कि जो माउथ पे हमारे टाइलिन या सलाइवा सिक्रेट हो रहा था, उसके अलावा सर्टेन लाइसोजाइम और ऑल्सो सिक्रेट। लाइसोजाइम्स क्या करते हैं, लाइसोजाइम जो होते हैं वो एक तरह से ब्रेकिंग डाउन करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, लिसिस कर देते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो दे ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन। अब कुछ और एंजाइम की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस व्हाट इट डज, इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स, ओके, इनटू सिंपलर फॉर्म, like pepsin break down the proteases. I am telling wrong. Pepsin is basically the enzyme which break down the proteases, means protein molecules, into simpler one like peptones, okay, which further keeps on dividing, keeps on breaking down and form the final product, that is amino acids, okay। कैशीन आपने सुना होगा, कैशीन is a मिल्क में प्रेजेंट होता है प्रोटीन जिसको ब्रेक डाउन करता है रेनिन, okay, which is get converted into then curd। Now, next question is what pancreas produces. Till now, what I am telling you, it's very important बेटा, क्योंकि शायद आपके कोर्स में चीज़ें ना हो सारी की सारी डिटेल में, बट जो आपके पॉइंट्स रिमेंबर हैं या जो साइड में इंफॉर्मेशन कॉर्नर्स दिए होते हैं, इफ यू विल सी थ्रू द एनसीईआरटी, सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इन डिटेल, ट्राइंग टू बी एलोबरेटिव, सो जस्ट लिसन मी केयरफुली। These were only the sufficient things for you बेटा, इसके अलावा आपको कुछ पता होना ज़रूरी नहीं है। Otherwise, if you find any query, you can ask me in comment section. You can communicate me via email yasirazamsq@gmail.com. Feel free to communicate with me. I don't have much equipment to teach you. Simple board I am having. I'll soon arrange the things for you as better as possible. Till then, stay safe, stay at your home. Best of luck.